ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna, we are reading from Bhagavad Gita, 3rd chapter, verse number 7. Begin. Yastva indriyani manasa यस्त्वमिन्द्रियाणि मनसा niyamarbhate arjuna नियमार्हते अर्जुन। karmendriyaha karmayogam कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् asaktaha sarvishishyate. असक्तः स विशिष्यते। Yastva indriyani manasa यस्त्वमिन्द्रियाणि मनसा niyamyarbhate arjuna नियम्यार्हते अर्जुन। karmendriyahi karmayogam कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् asaktaha sarvishishyate. असक्तः स विशिष्यते। यस्त इंद्रियाणि मनसा यस्त्वमिन्द्रियाणि मनसा यम्यार्भते अर्जुन नियम्यार्हते अर्जुन। कर्मेन्द्रिया हि कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. असक्तः स विशिष्यते। Devotee would like to recite. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्वमिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यार्हते अर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। You will see the word to word meaning. Yaha, one who, One who two, two, but, but indriyani, indriyani the senses, the senses manasa, manasa by the mind, by the mind niyama, niyama regulating, regulating arbhate, arbhate begins, begins arjuna, Arjuna O Arjun, O Arjun karm indriyahi, कर्मेन्द्रियैः by the active sense organs, by the active sense organs karma yogam, कर्मयोगम् devotion, devotion asaktaha, असक्तः without attachment, without attachment Saha Saha he, he vishishyate, Vishishyate it's by far the better. is by far the better. Translation and purport by Divine Grace Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from the material bondage and enter into the kingdom of God. The prime Swartha Gati, or the goal of self-interest, is to reach Vishnu. The whole institution of Varnasrama is designated or designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts so-bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. Next two slokas we'll see just the translation and then the important points of the purport we discuss. Perform your prescribed duties, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction
And in that way, you will always remain free from bondage. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobisham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadakritam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadhaitam Savadutam Parijana Shantam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Sakhanutam Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyat Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Ramdeva Ripuse Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all for this Sunday evening gathering here, and I am very grateful to Grace Priya for his kind invitation. So today we are discussing actually the topic that he has assigned me is Karma Yoga is better than the false renunciation of the material world. Okay. So I'll tell you one small incident, or rather a small story actually. Once it so happened that there was a person in the forest, and this person in the forest actually he lost his way and he went deep inside the forest. Now inside the forest he met a sage, and he was asking, naturally what he will ask, how do I get out of the forest? Correct, na? Suppose you are lost on the way, then what you will ask? How do I get out of this forest? Because you are not able to even see sunlight also. Whichever direction you are going, it was appearing it is non-ending only. So then he asked the sage, please help me. Then the sage instantly created one horse for him. And he said, no, this horse will take you out of the place. But two conditions are there. In order to make it run, you have to say, thank God or Hare Krishna. Okay. So whenever you have to make it run, you have to say what? Hare Krishna. And whenever you have to stop it, whenever you have to, Hare Krishna he has to say, whenever he has to stop, whenever he has to make it run, then, he has to say, thank God. Okay, you all heard this story already? No? So, this person, he said, okay, no problem, but then he said, see, the horse will go non-stop, without stopping, but you have to direct also, because the horse is just, it will just go on. So he was thinking that already so much time I spent in the forest here, I have to just get out of the forest somehow or other. So he sat on the horse and he started saying what? How the horse will run? By thank God. Thank God. So he was saying thank God, thank God, thank God, thank God, like that he was going. And then meanwhile, in the process, the horse was running for hours together actually. He forgot the second part, how to stop it. And at one point of time, the horse was running, and it was like big pathway.
and there was a cliff kind of thing, and the road was broken in between. So he was confused, and he was seeing the this one. The cliff is about to be there. What to do? How do I get? So he was just trying to recollect. He was putting too much pressure on his mind. How do I recollect actually? What is that? How do I stop this horse? Otherwise today, idhar hi Ram Naam Satya hai. Along with the horse, mera bhi dono ka, like that. He was thinking. He was about to be, out of the cliff actually. Suddenly he remembered what? Hare Hare Krishna. He said like this, Hare Krishna, and then the horse stopped. As soon as the horse stopped, it was big relief for him. You know what he said? Thank God. Thank God. Again the horse jumped actually. So now, what is the relevance of this particular story in our life here? Many times, actually we do our duties, and then we read little bit part of the scriptures, and then we get confused. What am I supposed to do? Yes. And then meanwhile we are actually executing our duties very nicely, but then we forget actually to balance, our business or our duties and then our spiritual duties also. Correct? Then totally sometimes we get confused, this to do or that to do, and then one gets completely lost actually, and then finally one makes sometimes actually a ruckus out of his life also. So this is what actually the Falgu renunciation is all about. So there are, so the context of this particular sloka is, see, Krishna is telling to Arjuna that you fight. And Arjuna is saying, no, I'll take sannyas. Arjuna is saying what? I'll take sannyas. Why should I fight? Then, he gives 5 reasons for not fighting. What are the 5 reasons that Arjuna gives? Compassion. So many innocent people are there in the battlefield. Why do I have to kill them actually so that I become king? I'm not so selfish. So compassion for the innocent people. Then sin. See, so many people I'll kill. Will I not get sin? Very good. Then what else? Total 5 reasons he tells. Family. See, the throne on which I am going to sit will be tainted with the blood of my own family members only. What enjoyment I'll get? Then how will I enjoy? That only the 4th reason, enjoyment, and the 5th reason is confusion. He is confused what to do, what not to do. So he was saying that I will take katora and I will go for bhiksha. That is better than killing all these people. Then somebody may say, but they are eager to kill you. Arjuna says they are fool. That doesn't mean that I am also fool. Correct? But sometimes in your family also you see child acts very foolishly. That doesn't mean that you also have to act foolishly, or some other family members act foolishly. That doesn't mean that you have to act foolishly. So like that Arjuna says that they are all selfish fellows, but I am not selfish. I will take katora and I will go for bhiksha. I don't need this kingdom. But Krishna says to him that, see, you may go for bhiksha, but हिंदी है. आप अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करोगे? See, you can sustain ना भिक्षा मांग के कटोरा लेके जाएंगे तो you can sustain his life. But the problem with that is, वो भिक्षा मांगने के लिए गए मान लीजिए, और किसी ने देखा उसको, अरे इतना हट्टा कट्टा जवान है. Arjun, he was a Kshatriya, he was strong body actually. And then somebody sees him, asking for begging, he is asking for alms. Then they will say, अरे कुछ काम धाम का नहीं है, कुछ कमाने को नहीं था क्या? तो भिक्षा मांगने गया, निकल इधर से. Then what Arjuna will do? His nature is what? Kshatriya, he will take his sword or he will take same bhiksha patra, he will take and hit the person on the head of you. And they cannot take panga also because he is very powerful. So Krishna is saying him that again anyway you will end up doing the same activities only. So in the previous chapter, in the 2nd chapter actually, Krishna tells that there is karma yoga, there is karma, and then there is jnana. So jnana is better than karma. Means the knowledge, the buddhi yoga is better than karma. So then Arjuna is confused. See, you are telling me that karma, which jnana is better. Jnana means the knowledge of the soul, आत्मा का ज्ञान, और ये जगत पे हम कैसे इंटेग्रल हो जाते हैं. तो भगवान बोलते हैं उनको, if you do any activity, आप जो भी कर्म करते हो तो उसके साथ में आपको पाप भी मिलता है. तो अर्जुन बोल रहे हैं आप क्या मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो? एक साइड में बोल रहे हो कुछ काम करो और युद्ध करो, सबको मारो, दूसरी साइड में बोल रहे हो बुद्धि होगा इज बेटर. Arjuna was confused. Now you tell me what should I do? So now Krishna is clarifying here. Actually there is karma and there is karma yoga. These two are
two different things. Like, no, one person I met, no, he is already 59 and he was retired actually from his office. ऑफिस से रिटायर होने के बाद में वो घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. तो मैंने उनसे पूछा आजकल क्या चल रहा है? बोले वानप्रस्थ हो गया हमारा. आपको पता है ना वानप्रस्थ? जनरली इन द वैदिक टाइम देयर आर 4 वर्णाश्रमास, करेक्ट? 4 आश्रम्स आर देयर. तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, करेक्ट? तो 50 के बाद में 51, 52, 1 गो टू फॉरेस्ट लाइक दैट. वानप्रस्थ लेना. तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले वानप्रस्थ हो गया हमारा. वानप्रस्थ बैठ के अभी यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर. सो वानप्रस्थ का मतलब वो नहीं होता है कि आप घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़े. आपको भगवान की भक्ति में लगना है, करेक्ट ना? सो मेनी टाइम पीपल एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड द राइट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली एंड दे मिसअप्लाई द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स. सो Arjuna, so he was thinking that he is taking वानप्रस्थ, but he was doing what? Sense gratification only, correct ना? इंद्रिय भोगी कर रहे थे वो, लेकिन क्या बोल रहे थे? वानप्रस्थ ले रखा है. और उनकी वाइफ अच्छे अच्छे पकौड़े बना के खिला रही है, खाइए खाइए. वो बोल रहे थे कि इसमें नमक कम डाला है, मिर्ची ज्यादा है. वो सब बोल रहे क्या है? वानप्रस्थ है. वानप्रस्थ मतलब जाओ मंदिर में भगवान का सेवा करो, वहाँ पे रहो, भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको भगवान के बारे में बताओ. दैट इज द मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ. That doesn't mean that one has to give up house or something like that. Daytime you go to the temple, night, evening time you come back and spend time in the house also. Otherwise, what will happen? See, the Vedic time was so nice that actually people, those who are vanaprasthas, they would go actually to holy places, gain wisdom, scriptural wisdom, and then come back to house. Then they will enlighten other family members also. But nowadays, what is happening actually? The family members, those who are elderly people, they are not trained actually in that aspect of spiritual training. Then they become attached to the post position and they keep holding the keys of the locker and everything, and then there is lot of fight. The newly married daughter-in-law, she is saying, hey, chabi mere ko do, and she saying, kaise de do. So all these fights are not there in Vedic time. Why? Because everybody is spiritually enlightened, correct? All these things are there mainly because the right understanding of the scriptures are not applied. So this person was also saying like this. So there is karma and there is karma yoga. Karma yoga means anything that is done in relation with Krishna. So your job also can be done in relation with Krishna. How? कोई बताएगा कि कैसे आपका कार्य जो आप बिजनेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, वो भी भगवान की सेवा में अप्लाई हो सकता है. हाँ, offer the results of that to Krishna. Krishna says कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मा कर्म फल हेतु भूर मातो संगेस्त अकर्मणि. You have the right to perform your duties, but don't get attached to the results of the duties. At the same time, whatever results you get, offer some portion of it to Krishna by offering charity. Like such a nice center is there actually. To maintain it, there are funds that are required, correct? Prasadam will be there at the end of the session. For that also funds will be required, correct? It is not that वो एकदम हवा से आकाश से आ जाएगा, correct ना? Buddhism knows actually all the permutation combination of things like that. So Arjuna was confused what to do. On one hand you are saying बुद्धि योगा is better, on the other hand you are saying युद्ध करो और सबको मारो, like. So भगवान ये बता रहे हैं कि देखो कर्म में और कर्म योग में डिफरेंस है. कर्म योग है वो भगवान की खुशी के लिए किया जाता है. कर्म है वो खुद की खुशी के लिए किया जाता है. समझ रहे हैं ना डिफरेंस? There is difference between karma and karma yoga. So I'll tell you now. See, you all know about समुद्र मंथन लीला. समुद्र मंथन लीला के बारे में पता है ना? Yes. देवता लोग और असुर लोग सब लोग साथ में आए. किसके लिए? अमृत पाने के लिए. सबका इच्छा था अमृत पाने के लिए. अभी आप देखेंगे तो समुद्र मंथन लीला में देवता और जो असुर थे एक ही जगह पर थे. अलग अलग जगह पे नहीं थे, एक ही जगह पर थे. समय भी एक ही था, टाइम भी एक ही था, प्लेस भी एक ही था, सर्कमस्टेंस भी सेम ही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट है. क्यों? देखो देवताओं को पूरा अमृत मिला और असुरों को कुछ नहीं मिला. क्यों? कई बार ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं कि देश काल पात्र के हिसाब से रिजल्ट मिलता है, करेक्ट? बट एक्चुअली वन कैटेगरी ऑफ पीपल दे वर डूइंग द सेम एक्टिविटी ओनली, and apparently it was appearing that actually the devatas are losing.
असुर है तो अमृत कलश केम एक्चुअली तो असुराज ने पूरा लूट लिया उसको, भागने लगे वहां से। और देवता लोग बोले अरे हमको भी तो, हमको तो बोले बीच लोग निकलो इधर से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। असुर लोग लेके, और जो स्ट्रॉन्ग असुर थे वो लोग लेके भाग रहे उसको आगे में, और जो कमजोर असुर थे वो पीछे से बोल रहे हैं देखो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके सामने। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग कैटेगरी में आते हैं जो कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज है ना, वो बोलते हैं कि सबको इक्वल मिलना चाहिए ऐसा। तो जो वीक असुर है वो ऐसे बोलते हैं कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। इट्स लाइक मोरालिटी अमंगस्ट थीव्स, चोरों के बीच में ज्ञान की बातें हो रही है ऐसे लाइक दैट। सो असुर लोग लेके भाग रहे थे, लेकिन भगवान किस रूप में आए? मोहित मूर्ति के रूप में आए। तो असुर लोग एकदम पूरा उनका आँख गोल गोल घूमने लग गया, तो उनको दे दिया कलश, और भगवान ने उनको एकदम चकाचौंध कर दिया, पूरा अमृत देवताओं को बांट दिया। लेकिन असुरों को कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार से भक्त और अभक्त एक्टिविटी सेम करते हैं। भक्त भी जॉब करता है, अभक्त भी जॉब करता है। भक्त भी पैसा कमाता है, अभक्त भी समटाइम ज्यादा पैसा कमाता है। करेक्ट? समटाइम आप यहाँ पे सेशन के लिए आएंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स, कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे अरे क्यों टाइम वेस्ट करने का उधर जाके, तो आप थोड़ा बिजनेस करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, एंजॉय करो लाइफ को। क्या मिला है ये सब करने में? किसने देखा है कि भगवान है कि नहीं? लाइक दैट। सो मेनी पीपल विल से लाइक दिस। तो असुर लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन अंत में अमृत किसको मिला? देवताओं को। उसी प्रकार से अंत में विजय किसकी होगी? भक्त की या भक्ति की? भक्त की। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल देख सकते हैं, हजारों लाखों एग्जाम्पल देखेंगे एक्चुअली। अंत में विजय किसकी होती है? भक्त की होती है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। 1990s में एक आदमी था हर्षद मेहता, बहुत फेमस था। उसके एक फ्रेंड थे, वो हमारे इस्कॉन के भक्त थे, उस टाइम में भी भक्त थे वो। तो उनका नाम है आनंद वृंदावन प्रभु। तो ये आनंद वृंदावन प्रभु और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन इसको एक आइडिया आया हर्षद मेहता को। आनंद वृंदावन प्रभु वाज वेरी गुड एट कोडिंग, और वो बिजनेस स्टॉक मार्केट का कैसे देखना होता है, हाईली एक्सपर्ट इन दैट। एंड हिज अदर फ्रेंड हर्षद मेहता, ही वाज वेरी गुड एट प्रोड्यूसिंग आइडियाज। तो उन लोगों ने क्या किया, हर्षद मेहता को एक लूप होल मिल गया उस सिस्टम में कि कोई लोग अपना पैसा डाल रहे हैं, तो पैसा डालने से और जब तक वो स्टॉक में चढ़ता है तब तक देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ अराउंड 7 days, 7 दिन का गैप रहता है उसमें। सो ही थॉट इफ दिस पीरियड दिस अमाउंट इज देयर, इफ वी कैन गिव इट आउट टू समबडी एल्स एंड गेट व्हाट इंटरेस्ट ऑन दैट, वी कैन अर्न अ लॉट। जस्ट इमेजिन 7 दिन पूरे देश का पैसा आपके पास है, कितना इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर। So he found out that loophole. Who? Harshad Mehta. So he came to Anand Vrindavan Prabhu and said, देख भाई मेरे को इतना अच्छा आइडिया मिला, हम लोग दिन में एकदम करोड़पति बन जाएंगे। आनंद वृंदावन प्रभु बोले आइडिया तो एकदम मस्त है, लेकिन मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। Then he went to his spiritual master, His Holiness Radha Swami, and asked, महाराज ऐसा ऐसा आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं है, दिस इज गोलमाल है थोड़ा, लेकिन पैसा बहुत आएगा इसमें। महाराज बोले अरे पैसा क्या, किसको पैसा हाथ का बैल होता है, आज है कल नहीं है, बट कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट इट इज सेड, इफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, लाइक दैट। तो ऐसा बोला उन्होंने, बोला कि सी अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट डू दिस। तो अपनी पत्नी के पास गए, वो भी भगवान की भक्ति, वो भी बोले देखो महाराज ने मना तो किया है, लेकिन देखो कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी मिल सकता है, तो ट्राई कर सकते हैं ऐसे लाइक, क्योंकि अमाउंट मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट इज ह्यूज। जस्ट इमेजिन दैट यू स्पेंड सम टाइम एंड यू गेट ऑलमोस्ट 100 करोड़ ऐसे। तो हमारे मन में भी लालच आएगा, ठीक है 50 करोड़ तो भगवान की सेवा में लगा देंगे कम से कम। अरे 100 करोड़ में से 50 करोड़ नहीं 80 करोड़ लगा देंगे, 10 करोड़ मेरे पास आएगा, कोई टेंशन। कई बार ऐसे आइडियाज आते हैं, बोलने के टाइम में बोल लेते हैं, लेकिन बाद में जब देना होता है ना सच में टेस्ट होता है एक्चुअली। ऐसे तो वो टेस्ट किए, लेकिन वो पूरी रात सोए नहीं। दूसरे दिन सुबह में उठे और जाके उसको डायरेक्ट बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा ऐसे। बोले देख मेरे पास आइडिया, तू नहीं करेगा कोई और करेगा। तो बोले ठीक है तू जिससे करवाना करवा ले, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। उसके बाद में आनंद, उसने एक्चुअली में दूसरे फ्रेंड को बोला, दूसरे फ्रेंड ने कर दिया, वो कोडिंग सोर्स वो सब मैचिंग वगैरह वो कर दिया, और 2 साल में वो आदमी बिलियनियर बन गया। कौन? हर्षद मेहता। और आनंद वृंदावन प्रभु अभी भी उसी की कंपनी में काम कर रहे हैं,
अभी वो कंपनी को भी उसने खरीद लिया और उसकी कंपनी में एम्प्लॉय है। तो एक दिन शाम को उसने पार्टी बुलाई, किसने? हर्षद मेहता ने। सब लोगों को बुलाया, अपने फ्रेंड्स को, बड़े बड़े फ्रेंड्स को बुलाया, और फ्रेंड्स में आने के बाद में सबके सामने उसका बेइज्जती करने लगे, आनंद दाऊ का और उसकी पत्नी का, कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो बिजनेस में इसको स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है। मेरे पास आइडिया था, काम नहीं किया, अभी देखो लंगूर की तरह भाग रहा है इधर उधर और किसी की सैलरी के पीछे डिपेंड करता है। अगर आज मैं इसको फायर कर दूंगा तो कल दूसरी कंपनी में जाएगा अपना रेज्यूमे लेके, सर मेरे को जॉब दे दो, सर मेरे को जॉब दे दो। तो ऐसा बड़ा बेइज्जती किया किसका? आनंद दाऊ को। बहुत बुरा लग रहा था ये एक्चुअली में, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या एक्चुअली में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल फॉलो करके। देखिए यहाँ पर किसकी जीत हो रही है, एक्चुअली में ऐसे लग रहा है किसकी जीत हुई है? हर्षद मेहता की। सबके सामने बेइज्जती भी कर रहा है ऐसे, और आनंद दाऊ वापस आए घर में, वो कंपनी से रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और वो बहुत टैलेंटेड है तो दूसरी कंपनी में जॉब मिल गया। तो 1990 से 1993 तक 3 साल तक किसी को नहीं पता था। तीसरी साल में गवर्नमेंट को पता चला, अरे ये तो बड़ा गोलमाल हो रहा है इधर तो हमारा पैसा ये कमा के खा रहा है एक्चुअली में, दिस पर्सन ही इज ईटिंग आवर मनी। तो गवर्नमेंट एक्चुअली तुरंत सेबी कॉल्ड फॉर ए कमिटी, इमीडिएटली दे सेट फॉर इट। सब कुछ पता लग गया कि एक्चुअली में इतना बड़ा गोलमाल हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, तुरंत उसको जेल में डाल दिया। उसके ऊपर बड़ा केस चला, 2000 इन द ईयर 2000 उसको जेल मिला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 2007 में जेल में ही मर गया हुआ। कौन? हर्षद मेहता। उधर ही उसका नाम सत्य हुआ, डिप्रेशन में आ गया, उधर ही मर गया उसके। तो ऐसा असुरों के साथ हो सकता है, ऐसा असुरों के साथ होता है। जो आसुरिक मेंटालिटी के लोग रहते हैं ना, ऐसे लगता है कई बार वो जीत रहे हैं आपसे, लेकिन अगर आप सही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो ना तो आपका ही जीत होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे घर पे मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दो लोग हैं। तो मेरे ताऊ जी है ना, वो थोड़ा चीटिंग किया हमारे साथ, मतलब जब लैंड का डिवीजन हुआ तो थोड़ा चीटिंग किया। मेरे चाचा जी के मतलब 4 बेटे हैं और मेरे पिताजी के 2 लोग हैं। तो डिवीजन के टाइम में उन्होंने लॉजिक क्या दिया पिताजी को कि हम प्रॉपर्टी अपने बेटों के हिसाब से डिवाइड करेंगे। देख मेरे 4 है और तेरे 2, तो मेरे को डबल मिलना चाहिए। पिताजी ही लाइक वेरी रिडाउट, जो कहना है कर लो, बस घर पर झगड़ा पानी मत करना। That he should took the property which is like double, and he gave us the property which is like half. And we were also okay, ठीक है, if we have guts then we'll earn and we'll survive and things like that, rather than creating so much of commotion at home. Because previously it was a joint family, and otherwise lot of fights and all things will happen. But mother was doing how you can get cheated up and things like that. Somehow or other, actually the fights started in the house. Mother and my auntie, they used to fight and so much thing, Finally, by the time actually I came to Bangalore, I was studying here. Somehow or other, actually the dispute was settled. They got actually double. They called relative. They did a lot of politics and things like that. So they got the double property, and we were happy with the half one. Now, last year, Rajasthan government or government of India, वो एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने, 6 लेन हाईवे पास किया। अभी वो 6 लेन हाईवे हमारा लैंड है ना, जो हाफ प्रॉपर्टी, उसको एकदम टच करके, मतलब 50 मीटर भी दूर नहीं है, उसको टच करके पास करो। उनका लैंड है वो 1 किलोमीटर अवे। अभी जैसे हाईवे सेक्शन हुआ, इधर से इस लैंड का वैल्यू बूम, और डबल नहीं, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20-30 टाइम्स, और उनका वैल्यू कुछ नहीं। तो फिर से आके झगड़ा करने लगे, हमको भी दो हमारा शेयर, 50-50 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी मेरे भैया बोले कैसे कर ले मैंने बोला भाई देखो, आप लोग डिसाइड कर लो कैसे क्या करना है, लेकिन मेरे को बीच में मत डालो। बट मैं ये बता रहा हूँ प्रिंसिपल क्या है, वो लोग लालची बने। ऐसे लग रहा था जीता कौन? वही। और मेरे पिताजी साधु आत्मा, शुरू से ऐसा ही है, उनके साथ कोई झगड़ा करने के लिए तेरे को जो करना कर ले, छोड़ मेरा पीछा छोड़ तू यार, like that, whatever is there at home, he gives actually for charity to saints. He calls so many sannyasis for feeding and all like that nature he is. But the uncle and all, they always take advantage of his innocence. लेकिन finally किसके साथ cheating हुआ? हाँ, so many times we may think that actually we are cheating others, but who gets cheated? We only get cheated. एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग 10वीं मतलब मैं नवोदय में पढ़ाई किया हूँ, वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल रहता है। तो एक स्टूडेंट था, वो हमारा क्लासमेट था, और वो स्टूडेंट एक्चुअली मैथ्स टीचर का बेटा था। तो हमेशा उसका मार्क्स सबसे ज़्यादा रहता था।
मतलब 10 मार्क्स का अगर टेस्ट हुआ तो उसमें हमको 9.5 मिलेगा, इवन सब कुछ सही किया उसके बाद में भी उसको 10 मिलेगा। क्यों? वो मैथ्स टीचर का बेटा है। और उसने कुछ ना, उसको पेपर पहले दिन ही मिल जाता था, उसका बाप बता देता था कि ऐसे ऐसे लिखना है। तो हम सोचे कि 6th 7th 8th 9th 4 साल सोचा कि अभी चलो 10th क्लास में बदला लेंगे इसके साथ। लेकिन 10th क्लास में गवर्नमेंट ने नया रेजोल्यूशन पास कर दिया, 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम नहीं हमारे साथ, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन न्यू प्रोसेस केम एक्चुअली। तो 10th क्लास में भी वो लोग ही एक्चुअली इवैल्यूएट करने वाले थे। ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो वो बाकी टीचर्स को भी इन्फ्लुएंस करके अपने बेटे के मार्क्स बढ़वा लिया। और नवोदय में ये रूल होता है कि जो 10th क्लास का जो टॉपर रहता है उसका नाम लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर। और मेरे को सबसे बुरा लग रहा था क्योंकि कॉम्पिटिटर था वो उसका और स्पेसिफिकली मेरा नाम लिखना चाहिए बोर्ड के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो 10th क्लास में नहीं हुआ, नाम नहीं लिखा गया। बट 12th क्लास में जब आए तो 12th में तो बोर्ड है और उसके साथ जेईई का भी प्रिपरेशन है। तो एक्सटर्नली स्पीकिंग उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन जब 12th क्लास का जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके मैथ्स के मार्क्स थे 27 100 में से। इतना खराब रिजल्ट था, फेल हो गया मैथ्स में। क्योंकि उसको एक्चुअली में आता नहीं था, पिताजी पेपर दे देते पहले ही लिख के दे देता था। तो कितना 6 साल तक हमारे साथ चीटिंग हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हु गॉट चीटेड? वो स्टूडेंट ही गॉट चीटेड, उसी के साथ बुरा हुआ। करेक्ट ना? फेल हो गया। तो कई बार हम सोचते हैं कि अगर एक्चुअली में हम लोग दूसरों को चीट कर लेंगे, लेकिन हम दूसरों को चीट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली किसके साथ चीटिंग होता है? हमारे साथ ही चीटिंग होता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम कौरवों के साथ चीटिंग कर रहे हो। कौरव लोग तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो कौरव लोगों ने क्या किया? पांडवों का प्रॉपर्टी लेने का कोशिश किया। और अर्जुन बोल रहे ठीक है उन लोगों ने चीटिंग का कोशिश किया। तो भगवान बोल रहे नहीं, धर्म का जो मीनिंग है वो मेरे हिसाब से होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तो भगवान ने यही बताने के लिए ये सेक्शन में बता रहे हैं कि कई बार ऐसे ढोंगी लोग रहते हैं जो लोग एक्सटर्नली ऐसे लगते हैं कि साधु है, लेकिन वो लोग साधु आत्मा नहीं रहते। तो अभी हम क्विकली इसका समरी देखेंगे। एक्चुअली छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया मैंने। तो 6th और 7th वर्ष में भगवान क्या बोल रहे हैं? One who restrains senses but mind dwells on sense objects is a pretender. तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग साधु लोग रहते हैं जो सैफरन कपड़ा पहने हुए लेकिन बीड़ी फूक रहे हैं। और इंडिया में ऐसे स्विंडलर, इनको स्विंडलर बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे जो चीटिंग साधु रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में रहते हैं। और ये चीटिंग साधु की वजह से एक्चुअली में जो सच्चे साधु है उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास चला जाता है। करेक्ट ना? That doesn't mean that actually we so अगर इंडिया में अगर किसी को कुछ भी खरीदना होता है ना तो एकदम पूरा जांच परख के खरीदते हैं। कोई लैपटॉप खरीदेगा तो पूरा चेक करेंगे कितना मेमोरी है, ये है वो। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात आएगी ना तो कुछ भी चेक नहीं करते। हर कोई अपने आप को ज्ञानी मानता है। ऑटो वाले को पूछो, उसको पूछा आपको गीता पता है? हाँ मेरे को पता है सब कुछ। तो मैं महाराष्ट्र में था एक साल 2022 to 23। इस टाइम पे हमारा पीडीसी कोर्स होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते थे। तो मैं मराठा में मैं ऑटो में जा रहा था, तो भगवद गीता लेके जा रहा था। मैं ऑटो वाले को पूछा आपको भगवद गीता आता है? तो बोल रहा है मतलब माहिती मतलब मेरे को मुझे आता है। तो मैं बोला कि ठीक है बताइए भगवद गीता का क्या कंक्लूजन? बोलो कर्म ही पूजा है, यही भगवद गीता का कंक्लूजन। तू बता, मेरे को पूछ रहे। बोलेगा कर्म ही पूजा है तो गधा भी पूजनी है, आप गधे की पूजा क्यों नहीं करते? तो सोचने लग गया। तो बोले गधा की पूजा क्यों करना चाहिए? गधा डॉगी इज आल्सो वर्किंग ना, काम तो वो भी कर रहा है और आपसे ज्यादा कर रहा है। तो कौन ज्यादा पूजनीय हुआ, आप पूजनीय हुए कि गधा पूजनीय हुआ? तो सोचने लग गया अरे यार फिलोसफी में कुछ गलत हो गया। तो कई बार लोग ना कंक्लूजन, भगवद गीता के कंक्लूजन को अपने आप को ऐसे समझने लग जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो रियल टीचर के पास जाके सीखते नहीं है कि सच में मतलब क्या है एक्चुअली में भगवद गीता के श्लोकों का। तो देवल से कर्म देवाधिकारस्ते, बस कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा नहीं है, ये गलत बात है। अगर कर्म पूजा होता तो गधा पूजनीय होता। कितने लोग अपने आल्टर में गधे की पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं? कोई करता है यहाँ पे? नहीं ना। इनफैक्ट आजकल के आईटी इंजीनियर से वो गधे से भी ज्यादा काम करते हैं। गधा भी शर्मा जाएगा उनके सामने। सो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कर्म ही पूजा नहीं है। तो कई बार एक्चुअली में ऐसे ढोंगी लोग आके ऐसी ऐसी बातें बता जाएंगे लोगों को, वही चीजें एक्चुअली में लोगों के दिमाग में फैलती रहेगी। इसीलिए आपको सच्चे साधु के कैरेक्टर पता होने चाहिए। तो प्रभुपाद ने शुरू से बोला है
सच्चा साधु मतलब मिनिमम 4 चीजें तो वो फॉलो करना चाहिए. क्या? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स. ये 4 चीजें तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल. अगर कोई भी ऐसा करता है पकड़ा गया मतलब गड़बड़ है उसके. उसके साथ में प्रभुपाद ने क्या बोला? नो टी, नो कॉफी, नो अनियन गार्लिक. आप देखो ये पैरामीटर पे कितने साधु सच में फिट होते हैं. बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे फेमस है, लेकिन आगे बाहर में फिर चाय का सुट्टा मारेंगे और या फिर सिगरेट पिएंगे. एक फेमस कीर्तनिया है एक्चुअली में. उनको एक बार इसको डिवोटी ने बुलाया था कीर्तन के लिए कि इतने बड़े फेमस कीर्तनिया है एक्चुअली में, कीर्तन करेंगे. अच्छा है. जब आए कीर्तन के लिए, कीर्तन कर रहे थे तो बीच में बोले थोड़ा मेरे को वॉशरूम ब्रेक चाहिए. बोले ठीक है जाओ. तो अपना बैग लेके जा रहे थे वॉशरूम के. तो बोले बैग क्यों लेके जा रहे हो वॉशरूम? बोले नहीं नहीं कुछ सीक्रेट चीज है. जाके गए अंदर में वो पवा निकाल के वहां पे पी रहे. अरे आप क्या करने वाले? बोले नहीं ये किए बिना मेरे को रस ही नहीं आता है. समझ रहे? तो ऐसे लोग, और वो बहुत फेमस है. उनके आज तक में सुबह सुबह में डेली में आज तक चैनल है हिंदी का, सुबह सुबह उसका प्रवचन भी आता है. इतना फेमस है, लाखों करोड़ों फेमस फॉलोअर्स है. बट पवा लगाया बता कीर्तन नहीं होता है. तो ये साधु है कि असाधु है? तो ऐसे असाधु से हमको बच के रहना चाहिए. कई बार ऐसे असाधु लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, दो लाल कपड़ा पहनेंगे और उनकी पत्नी भी रहेगी. साधु का कपड़ा पहने हुए उनकी पत्नी भी रहेगी और सब कुछ बोलेंगे आप साधु आत्मा है, ये है वो है, ऐसे करके. लेकिन वो क्या है? चीटर है. तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसे चीटर बनने के बजाय तो आप क्या करो, अपना कार्य करो और मन से भगवान की पूजा करो. करेक्ट? सो प्रीटेंडर, द ग्रेटेस्ट चीटर, सोज टू बी इन डीप मेडिटेशन. ऐसे लगेगा कि बड़ा जो एब्जॉर्ब भक्त है, तो बड़ा एडवांस भक्त है. बट इन माइंड ही ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स. कैसा पैसा मिलेगा मेरे को? 11 लाख रुपए देंगे तो ये कीर्तन के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. बहुत सारे फेमस भागवत कथाकार है. उनको आप जाओ भागवत, हमारे यहाँ पे बेंगलोर में भागवत कथा करने के लिए आएंगे क्या? हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. 21 लाख रुपए मिनिमम फीस है और वो भी 1 साल पहले एडवांस बुकिंग होता है, नहीं तो भूल जाओ उसके बारे. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर इन विच कैटेगरी? प्रिटेंडर साधुस. His philosophy has no value. The knowledge is stolen by illusory energy of the Lord. अब दिख रहा है ना यहाँ पर ये वाला. ओके. और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे पास, लेकिन मेरी भी तो इच्छाएं हैं, हमको भी इच्छा है एक्चुअली में अपना डिजायर फुलफिल करने का. करेक्ट? तो हमको ये सोशल ऑर्डर रहता है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी फॉलो करना चाहिए. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे ब्रह्मचारी है, उसका ड्यूटी क्या है? पठन पाठन यजन याजन. उसको पढ़ना चाहिए स्क्रिप्चर्स, लोगों को समझाना चाहिए स्क्रिप्चर्स. उसका ये ड्यूटी. गृहस्थ है, उसका ड्यूटी क्या होता है? गृहस्थ का ड्यूटी कोई बताएगा कि क्या ड्यूटी है गृहस्थ का? आप में से ज्यादा लोग गृहस्थ है. परिवार को संभालना है. परिवार को संभालना, बस ये ड्यूटी है और कुछ नहीं ड्यूटी है. वैष्णव सेवा. कमाओ और घर में लगाओ. घर पे लगाओ, धर्म पे लगाओ. ओके, धर्म पे लगाओ. वेरी गुड. See, the grahastha ashram is the one actually who takes care of all the other 3 ashrams. ब्रह्मचारी काम नहीं करते, वानप्रस्थ है वो भी काम नहीं करते, सन्यासी वो भी काम नहीं करते. So first and foremost duty of grahastha is actually charity. तो आप बोलेंगे पैसा कलेक्ट करने के लिए आ गए क्या यहाँ पर? Charity of different things. Charity of time, charity of money, charity of resources, charity of one's own इंटेलिजेंस. सो जैसे ब्रह्मचारी है वो किस चीज की चैरिटी करेगा? पैसे की, मतलब अपना नॉलेज की चैरिटी करेगा. जो गृहस्थ है उसके पास ज्यादा किस चीज की अवेलेबिलिटी है? धन की अवेलेबिलिटी है. उसके अलावा टाइम की भी अवेलेबिलिटी है. भगवान के लिए समय निकालना, वो भी चैरिटी है एक्चुअली. तो पैसा कमाना, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, बट अलोंग दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज एक्चुअली टू गिव चैरिटी. दैट इज द ड्यूटी ऑफ गृहस्थ. और जो वानप्रस्थ है उसका ड्यूटी क्या होता है? ऑस्टेरिटी, तपस्या करना, अलग अलग जगह पे जाना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा के बारे में सुनना. और जो सन्यासी है उसका ड्यूटी क्या है? मेन ड्यूटी है वो प्रचार करना. सन्यासी द रियल प्रीचर एक्चुअली. ऑफ कोर्स वी आर ऑल acting on behalf of Srila Prabhupada. So like that, these rules and regulations of Varnashrama system has to be followed. Then the system will be very nicely working actually. So in the 7th verse, Krishna is saying
sincere person, he controls his mind, engages in karma yoga, that is in Krishna consciousness without attachment. He is far, far superior than the so-called, so many big famous yogis who are having like millions of followers on YouTube and things like that. You are all much better than them if you are following this process of karma yoga without being attached to the work, but rather you are attached to actually your duty on behalf of Krishna. तो परपट में प्रभुपाद बताते हैं जो स्वार्थ गति है, जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो क्या है? विष्णु गति. जैसे कई बार लोग सोचते हैं ना, मर जाएंगे तो क्या लोग, चार लोग क्या कहेंगे, मर जाएंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मर जाएंगे तो चार लोग. तो फुल लाइफ एक्चुअली वी कीप वरीइंग अबाउट इफ आई गो टू टेंपल व्हाट अदर्स विल थिंक, if I go put tilak what others will think, if I wear kanti mala what my family members will think. We always keep thinking ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में. But when we die at the end of the death, so what others will say? राम नाम सत्य है. तो एंड ऑफ लाइफ मरने के बाद भी क्यों बोल देगा? कई बार ऐसे बोलते हैं ना लोगों को, राम नाम सुन, ऐसा क्यों बोल रहे बाबा, ये बहुत अशुभ है, बर्थडे के टाइम पे बोलने का है. अरे उसका मतलब समझना है. उसका मतलब क्या है? राम का नाम ही सत्य है, वही चीज आपके साथ जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा. इस दुनिया का आपका फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगलो, कार, जो भी कलेक्ट किया है वो सब इधर ही धरा रह जाएगा. क्या जाएगा आपके साथ? राम का नाम जितना लिया है वही रियल सच्ची धन दौलत है आपके साथ, वही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ. तो इसीलिए हमको लखपति बनना है. लखपति कैसे बन सकते हैं? 1 लाख भगवान के नाम लेने चाहिए मिनिमम. 1 लाख नहीं तो कम से कम कितना? कम से कम 1 लाख से कम कितना होगा? 1 लाख को 4 से डिवाइड करो, 25,000. 25,000 मतलब 16 माला. 16 rounds is equivalent to 25,000 holy names. तो एटलीस्ट 25,000 नाम भगवान का डेली लेना चाहिए. इफ नॉट देन तो 12,500 नहीं तो 6,000, मिनिमम 12,500 नहीं तो 25,000 तो लेना चाहिए. और एकादशी वगैरह ऐसे दिन आते हैं तो उस दिन टाइम रहता है, स्पेशल सेल रहता है, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए. तो जो स्वार्थ गति है वो कौन है? लॉर्ड विष्णु. So a householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. How is that? Live controlled life as prescribed in the Shastras. Basically, do your duties responsibly. At the same time, take up to Krishna consciousness. Like morning time, you get up early morning, chant your rounds, attend the class that Prabhuji is giving, and then go for your job. In the evening time, come and read scriptures. 5 and 10 minutes you do kirtan with your family members. जिस किसी के भी परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है, परिवार वालों को बुलाओ, सबको साथ में 10 मिनट कीर्तन करो, कभी झगड़ा नहीं होगा. गोल्डन रूल है. 10 मिनट सब लोगों को बुलाओ, लेकिन वो आ जाए उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन एक बार जब आने लग गए ना, तो वो रस लग गया उनका कीर्तन का, तो फिर कुछ नहीं होगा. आपका जो घर है वो वैकुंठ बन जाएगा. Like 10 minutes kirtan we should do every day. Every grahastha should do in the evening time minimum 10 minutes kirtan. If possible half an hour. और अगर कोई और नहीं कर रहा, आप अकेले बैठ के करताल लेके या फिर ताली बजा के कीर्तन कर सकते हैं. ऐसा बोला गया है स्क्रिप्चर्स में, जब हम ताली बजाते हैं ना कीर्तन में, तो क्या होता है? हाथ की रेखाएं वो उड़ जाती है. और चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, जैसे वो वहाँ पे कबूतर बैठा है, देखो, अगर आप ताली बजाएंगे ऐसे तो क्या होगा? उड़ गया. ऐसे ताली बजाते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय में पाप पक्षी बैठे हैं, वो सारे पाप पक्षी उड़ जाते हैं. उड़ के कहाँ पे जाएंगे? वो बैठेंगे उनके हृदय में जो लोग कीर्तन नहीं करते. तो कीर्तन के टाइम पे बैठ के ऐसे खाली नहीं बैठेगा, ताली बजाते जोर जोर से. ठीक है ना? क्लास के एंड में, क्लास के बिगिनिंग में लेजी नहीं बजेगा, कीर्तन में ताली. तो गाने वाले को भी इंटरेस्ट आता है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नहीं तो लगेगा अरे यार मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ, कहीं कोई मोबाइल में बिजी है, कुछ और बिजी है. कोई ऐसा जो पैरेलली काम कर रहा है ना, तो सबके पाप पक्षी आके किसके हृदय में बैठेंगे? उसी के. तो भक्तों के संग में आए तो नाचो गाओ और भगवान के धाम जाओ. बस ये प्रोसेस है, कुछ ज्यादा नहीं कटेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कटेगा. So Prabhupada says in purport, a sincere sweeper in the streets is far better than the child meditator
who meditates only for the sake of making a living. वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. तो अर्जुन का प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? क्षत्रिय है, यू नो, क्षत्रिय है एक्चुअली. तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? धर्म को बचाना. तो कई बार जो स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर हम भी धर्म को बचाएंगे. क्या है धर्म को बचाना? जाके मुस्लिम लोगों को मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे. अरे वो धर्म नहीं. स्टूडेंट का ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना. करेक्ट ना? कई बार स्टूडेंट्स एक्चुअली उल्टा ले लेते हैं. कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करेंगे. गर्लफ्रेंड के साथ भागेंगे, यू नो, बाइक चलाएंगे, स्कूटर करेंगे, कई बार गैम्बलिंग करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे. उसका ड्यूटी क्या है? पढ़ाई. अरे कृष्णा, बच्चों का ड्यूटी है खेलना. So prescribed duties they should do actually. When we do our prescribed duties, see एक बात आप नोट कर लीजिए. स्क्रिप्चर्स में जब भी कभी भी बात होती है तो सबसे पहले हर कोई एक चीज के बारे में बात करता है. वो क्या है? मेरा ड्यूटी क्या है. जैसे भगवत गीता हुआ, अर्जुन ने बोला भगवान मेरा ड्यूटी क्या है? लड़ू कि नहीं लड़ू? मेरे को तो लगता है नहीं लड़ना चाहिए. उसको एक ही चीज का कंफ्यूजन है. परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं उनका ड्यूटी क्या है? बर्थडे से पहले व्यक्ति का ड्यूटी क्या है? क्या करना चाहिए उसको? तो ऑलवेज वैदिक टाइम में लोग रिजल्ट के बारे में जो नहीं सोचते थे, किसके बारे में सोचते थे? मेरे काम क्या है, मेरे ड्यूटी क्या है. आजकल लोग किसके बारे में सोचते हैं? क्या मिलेगा मुझे, ये करूंगा तो क्या मिलेगा, वो करूंगा तो क्या मिलेगा. अरे ये नहीं सोचते कि आपको क्या करना चाहिए. बट वो क्या करने के बजाय क्या करना चाहिए उसके बारे में फोकस करने के बजाय उससे क्या मिलेगा वो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं. इसलिए टोटल मैच हो जाता है. क्या? फिर करियर काउंसलिंग चाहिए. सबका बेटा इंजीनियर बनना है, मेरा बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए. फिर पता चला सबको इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं लग रहा है. अरे किस लिए जॉब? इंजीनियरिंग किया तो ना मेडिकल कर, डॉक्टरेट कर. और डॉक्टर में पढ़ाई बहुत लंबे साल तक चलता है. अरे कुछ तो कर बट पैसा कमा. तो फिर करियर काउंसलिंग. इंजीनियरिंग के बाद में ना लोगों को फिर करियर काउंसलिंग लगता है. क्या करना चाहिए मुझे यूपीएससी के लिए जाना चाहिए, मुझे बिजनेस के लिए जाना चाहिए, एमबीए के लिए जाना चाहिए. ऑल दिस कंफ्यूजन इज देयर मेनली बिकॉज ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. सो व्हेन वन परफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज gradually actually the heart becomes purified. Okay, just last 5 minutes then I'll end it. Okay. Srila Prabhupada's purport for the third verse, he says, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है. यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रा लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. इसका मतलब क्या है? अगर कोई ड्यूटी, कोई कार्य अगर भगवान के रिलेशन में कर रहा है तो क्या होगा? वो उसको बंधन में नहीं बांधेगी. अगर भगवान के विषय में नहीं कर रहा है तो उसको बंधन में बांधेगी. कोई भी ड्यूटी ले लो. जैसे आप अपने बेटे का ध्यान रख रहे हो, माए हैं, अपने बेटों का ध्यान रखना पड़ता है. करेक्ट? अगर वो बेटे को आप अपना बेटा समझेंगे तो आपको मोह आएगा, इल्यूजन आएगा. लेकिन वही बेटे को अगर आप देखेंगे कि भगवान ने ये बेटे को मेरे को भेजा है, इसकी केयर करना मेरा ड्यूटी है, तब क्या होगा? आपको इल्यूजन नहीं आएगा, आपको मोह नहीं आएगा. आप ये जगत में बंधेंगे नहीं, बट आप प्रोग्रेस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. उसी प्रकार से हमारा कोई भी ड्यूटी हो, हमको उसको किसके रिलेशन में करना चाहिए? भगवान के रिलेशन में. तब वो कार्य यज्ञ बन जाता है. ऐसे नहीं कि गीता जयंती के दिन जब यज्ञ होता है, यहाँ पर जो ब्राह्मण आता है वो जोर जोर से मंत्र बोलेगा, घी डालेगा और आहुति लगाएगा, वही यज्ञ है. नहीं. Any activity that is done in relation with the Supreme Lord is called yajna. So the life of a devotee should be what? Yajna. ठीक है? तो just to summarize, हमने क्या डिस्कस किया? शुरू में हमने डिस्कशन किया था अबाउट वो घोड़े वाला स्टोरी. करेक्ट? याद है आपको? साधु टोटल कंफ्यूज हो गया था उसके. तो उसी प्रकार से आजकल लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है. क्यों? उनको पता नहीं है कि सच्चा साधु कौन है और बोगस साधु कौन है. यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, हर कोई साधु है, इसके इतने सारे फॉलोअर है, ये तो पक्का साधु होगा. बाद में पता चला वो तो ढोंगी निकला. जैसे राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पे बहुत फेमस साधु था उस टाइम पे. उसके कैरेक्टरिस्टिक देख के लगते थे पक्का ढोंगी है. वो क्या करता था? रासलीला करता था. और उसका बेटा भी, आपको नाम पता होगा, क्या नाम है? आसाराम बाबू.
मेरे बहुत सारे रिलेटिव उसका पूजा करते थे। हाँ, तो मैं उनको बोलता था अरे यार ये तो कहीं नहीं बोला है कि एक्चुअली में वो कृष्ण है। वो बोलता था वही कृष्ण हूँ, और दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला करता था। लेकिन बाद में पकड़ा गया, अभी जेल पे। हाँ, अभी जेल में है, उसका बेटा भी जेल में, दोनों जेल में। हाँ, तो ऐसे ढोंगियों से हमको, बट एक टाइम पे वो इतना फेमस था कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स थे सब जाके उसके पैर दबाते थे। अभी भी वीडियोज है, अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करिए, अमरीश पुरी, सलमान खान, ये सब बड़े बड़े एक्टर लोग ना उसके जाके पैर दबाते थे, इतना फेमस था। लोग उसके भजन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, कथा सुनते थे। आप राजस्थान में जाएंगे ना, राजस्थान, गुजरात और ये वाले एरिया में हर एक घर में एक्चुअली में उसका वो रहेगा। हर एक ट्रैक्टर वाले जो गांव में जो लोग खेती करते हैं ना, वो लोग बड़ा स्पीकर लगा के रखते हैं अपने ट्रैक्टर में, और कैसेट लगाते हैं उसमें, और उसमें भजन बजाते रहते हैं, या कुछ कीर्तन बजाएंगे, कुछ तो बजाते रहते हैं एक्चुअली। तो उस टाइम पे एक्चुअली उसी के कीर्तन बजाते थे, लेकिन उसके कार्य ऐसे थे एकदम ढोंगी जैसे। तो हमको ऐसे ढोंगियों के फॉलोअर नहीं बनना है, हमको परखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, साधु ड्रेस से नहीं होता है, साधु किससे होता है? क्वालिटी से, कैरेक्टर से। साधु का मतलब स्क्रिप्चर में क्या होता है? एक्सेलेंट। One who is excellent in his behavior, one who is excellent in his character. That is the meaning of साधु। साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई लाल कपड़ा पहन ले तो साधु हो गया। जस्ट समझ, फिर बाद में पूछेंगे कुछ। फिर हमने उसके बाद में डिस्कस किया क्या सच में कर्मयोग है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करो, और अर्जुन बोल रहे हैं, अभी आपने बोला है कि बुद्धि योग इज बेटर देन कर्म। सो इसीलिए भगवान उनको कंफ्यूजन को दूर करेगी। कर्म अलग है, कर्मयोग अलग है। कर्मयोग मतलब ये भगवान के रिलेशन में किया गया है, और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो जिस आश्रम में है उस आश्रम की उसको ड्यूटीज करनी चाहिए, उससे उसका हार्ट का प्यूरिफिकेशन होगा। साथ में भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति मतलब हमको लखपति बनना है। वो लखपति हम कैसे बनेंगे? हाँ, भगवान का नाम लेने से। और अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम चीटर के फॉलोअर बन जाएंगे। और फिर उसके पहले हमने एक और चीज देखा था कि कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम धर्म का पाथ फॉलो करते हैं तो ऐसे लगेगा कि हम लोग एक्चुअली में बाकी के लोगों से कम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाकी के लोग हमारे से ज्यादा आगे एडवांस बढ़ रहे हैं, वो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा फेमस हो रहे हैं ऐसे। तो वहां पे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया दो, एक तो समुद्र मंथन लीला का और एक हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता को भी क्या हुआ था? बहुत पैसा आया, और आनंद वृंदावन प्रभु का एक्चुअली में मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज आनंद वृंदावन प्रभु आराम से अपना जिंदगी जी रहे हैं। हजारों लाखों लोग एक्चुअली में डिवोटीज उनसे इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। और ये दूसरे जो आदमी है मर आगे गए, पता नहीं कौन सी नरक में हो गए। करेक्ट ना? तो उसी प्रकार से हमको भगवान का नाम जब का एक्चुअली में हमको सहारा लेना चाहिए, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका किसी का कोई प्रश्न हो या फिर क्वेश्चन हो तो प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पकड़ा जाए वही ढोंगी है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि जब तक पकड़ा नहीं जाए तो ढोंगी नहीं कहते। जब तक पकड़ा नहीं जाए तो ढोंगी नहीं है, क्योंकि सच वही है जो पकड़ा जाता है। पर्दे के सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, वो तो वही चीज जानता है कि जो बाद में सामने सच आता है। इसीलिए प्रभुपाद ने, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसी के लिए आपको बताया था कि एक्चुअली में आजकल इंडिया में ना कुछ भी परचेज करो आप, तो हर कोई लोग पहले चीज ना उसको परखता है अच्छे से कि ये सही है कि गलत है, इसका क्या है, कितने साल चलेगा, कितने साल का गारंटी है, कितने साल का गारंटी नहीं है, कहाँ पे बना हुआ है, ऐसे। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में आता है तो हर किसी को फॉलो करने लग जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले कैरेक्टर दिया है, कौन साधु है। तो हमको समझना चाहिए स्क्रिप्चर से कि साधु कौन है, और उसके बाद में उसको फॉलो करना चाहिए। उसके जीवन को देखना चाहिए कि आदमी ये चीजें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आप इस्कॉन में देखिए, डायरेक्ट सबसे पहले 4 नियम का फॉलो रेगुलेशन मस्त है। अगर कोई 4 नियम का फॉलो नहीं कर रहा तो उसको इस्कॉन में दीक्षा ही नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आप भक्ति रथम सिंधु एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि एक सिंसियर बोनाफाइड गुरु की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो आप बोनाफाइड गुरु के कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए, वहां से समझिए। तो मैं आपको बता देता हूँ समझ में। 4 नियम का फॉलो: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स डायरेक्टली, नो टी, नो कॉफी, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो बिजनेस मेंटालिटी, नॉट व्हेन आई एम गिविंग क्लास फॉर सिटिंग इन फ्रंट रो 10 लाख, सिटिंग इन बैक साइड रो 10,000 रुपीज। ऐसा होता है भागवत कथा के
भागवत कथा में। तो मतलब वो क्या है, साधु नहीं है, वो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन का हमको वेट नहीं करने का है, हमको किस दिन पता करना है इसके बारे में। द डे when we start coming to this center, ask Muli Priya Prabhu, he will tell you. So ISKCON में एक्चुअली में सब कुछ खुला खुला है, किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत पकड़ो इसको, निकालो यहाँ से, ऐसा। तो स्क्रिप्चर्स को आपको पढ़ना है, समझना है कि ये जो बता रहा है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद में उनको देखना है। मुरली प्रिया प्रभु आपको बोलेंगे हमको जप करना चाहिए, भगवान का नाम में जप करना चाहिए, खुद कर ही नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे कीर्तनिया हैं, आएंगे कीर्तन करेंगे, उनको बोलो आप भगवान का नाम का जप करते हैं, नहीं, पावा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ भी देखना है। तो इसीलिए आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, दो चीजें होती है, एक तो डिटर्मिनेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट, यू विल बी एबल टू रियली डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं कि यूट्यूब का है ना शॉर्ट्स हम शॉर्ट उसको रोल करते रहेंगे और पता चला हमको स्क्रिप्चर्स का नॉलेज मिल गया। जैसे एक स्टूडेंट है मेरे पास और बोल रहा था कि आप क्यों बोलते हैं 33 करोड़ डेमिगॉड्स है, ये तो 33 कोटि मतलब वेराइटी है। मैंने उसको पूछा कि कहाँ पे रेफरेंस है, बोला देखो ये यूट्यूब शॉर्ट्स में ये आदमी बता रहा है। तो कोई यूट्यूब शॉर्ट में किसी आदमी ने बताया कि 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स ऑफ डेमिगॉड्स है। मैंने कहा भाई यार मैं 33 से ज्यादा तेरे को नाम बता देता हूँ। तो फिर वो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कौन सी स्क्रिप्चर में लिखा है ये, बोले नहीं कोटि मतलब टाइप भी होता है, ये होता है वो होता है, ऐसे बोल रहा था। फिर बाद में रेफरेंस क्या है उसका, यूट्यूब शॉर्ट, कोई रेफरेंस है क्या, कौन सी स्क्रिप्चर में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, कौन से उपनिषद में लिखा है, वो हमको जानना है। कई बार लोग आपको ऐसे कोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, कर भी पूजा है भगवद गीता, नीचे भी लिखा है, कहाँ पे लिखा है भगवद गीता में, कहीं नहीं लिखा है। एक और कोट बताता हूँ, जैसे जो एक आदमी ने मेरे को कोट भेजा ऐसे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, रेफरेंस भगवद गीता। मैंने पूछा भाई कहाँ लिखा है, थोड़ा बता यार, मैंने कभी 5-6 बार पढ़ लिया भगवद गीता, आता नहीं है इस कोट के क्रॉस में। तो बोला नहीं वो मत मेरे को पूछ, बट फिलोसफी प्रॉपर है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अभी किसी के साथ चीटिंग हो गया, मान लीजिए किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसको जाके बोलो अच्छा हो रहा है, वो आपको मारेगा थप्पड़ पकड़ के। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, उसको जाके बोलो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, आपको बोलने के लिए सर ये सब दीज आर लाइक कॉन्कोक्टेड आइडियाज, बद घड़ित विचार कुछ भी आ जाता है उसको लिख देते, लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, बोलते हैं नीचे में लिख देते क्या भगवद गीता। क्यों भगवद गीता क्यों लिखते हैं, बहुत फेमस हो जाएगा वो, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं ना, तेरे माइंड का है तू रख यार, मैं क्यों सुनना है। लेकिन भगवद गीता बोल देता हूँ, भगवद गीता वैसे बोला गया क्या, वो सच है, लेकिन हमको वेरीफाई करना है कहाँ पे भगवद गीता में बोला गया, बताओ थोड़ा। आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? आंसर मुझे मिल गया, लेकिन एक और आंसर है, मतलब एक और क्वेश्चन मेरा है। सभी लोग, मुझे काफी लोग मेरे से प्रॉब्लम लिखे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको पैसा लूटता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आंसर उनको ये होता तुमने कितना पैसा दे दिया। करेक्ट, क्योंकि मैं अपने से बात करूँ, मैं यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से आ रहा हूँ, मैंने कितना पैसा दे दिया, मेरे कितने पैसे स्कूल बढ़ गया, ठीक है। दूसरा मेरा फिर, क्योंकि हमें काउंटर अटैक तो करना है, क्वेश्चन तो मिलेंगे लेकिन काउंटर अटैक करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर दूसरा आता है कि भाई ये कैसे अपने को बढ़ा रहे हैं। मैंने ये बोलता भगवान के नाम के लिए किसी भक्त ने कुछ दे दिया, वो प्रॉपर्टी लेके वो तो भगवान के नाम में बढ़ गया, वो ये नहीं होता कि इसको अपने को बढ़ा रहा है। भाई सपोज ये स्कूल टाइम पर चल रहा है, यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमें ये जगह दी है, तो इस जगह देने का मतलब ये नहीं कि हमें स्कूल ने ये जगह ले ली। सही बात है भाई, ये तो एक भक्ति का साधन है कि हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, जो मुझको समझ में आया। और आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्या बताना होता है? एक्चुअली में जैसे ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं ना, मैंने जो बताया अब लेक्चर के बीच में, तो कई बार ढोंगी लोगों को इस्कॉन वाले एक्सपोज कर देते हैं, तो उनका बिजनेस ठप होने वाला हो जाता है। जब बिजनेस ठप होने वाला होता है तो बोले ये गलत है, वो गलत है, सब गलत है, हम गलत नहीं है बस। जैसे शुक्राचार्य जब बलि महाराज भगवान विष्णु को सरेंडर करने के लिए गए, तो वो क्या बोलने लगा, ये विष्णु है, ये चीटर है, इसके सरेंडर मत करना। बलि बोले यार सब स्क्रिप्चर्स तो यही बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु को सरेंडर करना है, और तुम बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। शुक्राचार्य ये सब क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनको डोनेशन मिलता था ना बलि महाराज से, तो बलि महाराज ने सब कुछ विष्णु को दे दिया, तो उनका उनका जो
डोनेशन जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा, तो उसको उसका एंग्जाइटी था, इसलिए वो बोलने लगे अरे इसको मत दो, ये चीटर है, ये है वो है, ऐसे करके इसने तुम्हारे पूर्वजों को मारा है, ये किया है वो किया है। तो कई बार ऐसे चीटर लोग हैं ना, वो यूट्यूब में इस्कॉन के बारे में जाके देखेंगे ना, इस्कॉन सेंड्स मनी टू अमेरिका, इस्कॉन इज ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन एंटिटी, इस्कॉन इंडिया में नहीं बना था, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन बनाए हुए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप जाके पूछो, इवन इस्कॉन का रूल है, हमारे जीबीसी का रूल है, एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर में नहीं जाता। What to speak of sending one, country to another country? And क्या आपको नहीं पता है कि गवर्नमेंट ऐसे अलाउ कर देगा ये कंट्री से हम उस कंट्री में पैसा भेजें? Rather, in 1970s when India was very poor, also not so much rich, but that time actually Prabhupada built the biggest temple of ISKCONs, Mayapur, Mumbai, Hyderabad, and Juhu with Mumbai. So these 4 temples actually Prabhupada built. The donation, all these big temples are big, huge palatial temples actually, made fully with marble. Thousands of crores have gone actually. Entire property was purchased with US money. उल्टा अमेरिका से पैसा आया था। तो मैं इस्कॉन सरदारपुर के फाइनेंस कमेटी में एक अकाउंट है, उसका मैं भी परिचालन करता हूँ। मैं मेरा मोबाइल नंबर ही लिंक्ड है उससे। मेरे को सब कुछ पता है, इन एंड आउट, कहाँ पे कौन कौन सा पैसा जाता है, कौन सा नहीं जाता है। और हमारा एक्चुअल में जो सीट बनता है वो पब्लिकली भी हम लोग सेंड करते हैं कि हमारा ऑडिट सीट है, किसी को जहाँ पे भी जाके वेरीफाई करना कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एक्चुअली पूरा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो जो लोग आते हैं भी लोग छोड़ के जा नहीं पाते, क्यों? उनको लगता है कि ये लोग ट्रांसपेरेंट है, और जो भी आप डोनेशन देते हैं मूल्य प्रिया अपने घर पे नहीं लेके जाएंगे, वो लोग यहीं पे लगाएंगे, इसीलिए फ्लरिश करता है। बाहर के मंदिर में आप पैसा दो, कितना भी दो, मंदिर का एक्चुअली में दीवार पे कभी पेंटिंग नहीं होगा, फैन नहीं लगेगा, लाइट नहीं लगेगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। क्यों? लोग लेते हैं, पॉकेट में भर के लेके चले जाते हैं। जैसे रिसेंटली मैं द्वारका गया था, वहाँ पे एक मंदिर था जो भेंट द्वार का मंदिर है। तो पुजारी से पूछ रहा था, यार इतना डोनेशन मिलता है, थोड़ा दीवार को पेंटिंग तो करना अच्छा लगता है। अरे क्या करें यार, परिवार है, ये है वो है, यहाँ पे 6,000 मुस्लिम लोग हैं, हम 200 केवल ब्राह्मण हैं, कैसे तो परिवार को पाल रहे हैं, ये है वो है। तो बात सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं देता है क्या? तो बोल रहा है कि वो सब ठीक है, लेकिन मैंने पूछा कि आपको कितना मिलता है मंथली, कितना लोग आप डिवाइड कर दो। अभी लास्ट महीने मेरे को केवल 2.5 लाख मिला एक्चुअली में, वो दूसरा वाला 3 लाख रुपए लेके चला गया ऐसे। तो ऐसे तो ढोंगी लोग बैठ जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जो भी डोनेशन देने वाले रहते हैं उनका भी मन चला जाता है। लेकिन जब ऐसे धाम में जाएंगे, ऑफकोर्स वो धाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको समझना चाहिए कि एक्चुअली ये लोग भगवान की सेवा के लिए सच में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस्कॉन इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स करता है। अभी रिसेंटली हमने वैकुंठ एकादशी किया सरदारपुर सेंटर में, हमने बड़ा डेकोरेशन किया था, 1 लाख रुपए गया डेकोरेशन का। पैसा तो गया था, अभी वो डोनेशन तो आया ना कहीं से। अब लोग आए, देखे इतना अच्छा किया है, इतना अच्छे से सेलिब्रेशन किया, तो अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो कई बार लोग ना ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं ना, वो आरोप लगा देते हैं, और वो सब चीज़ें यूट्यूब पे बहुत आसानी से फेमस हो जाती है। लेकिन अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप जाके चेक बोल दो कि हमको थोड़ा बैलेंस शीट दिखाओ अपना, तुरंत कोई भी सेंटर आपको बैलेंस शीट दिखा देगा, देखो ये बैलेंस शीट है, इतना बाकी है, थोड़ा दे दो यार। लाइक दैट। तो आप उस चीज़ के लिए एकदम निष्फिक्र रहिए। इनफैक्ट जब मैं शुरू में आया था तो मेरे रिलेटिव्स ने भी यही बोला था, तुम्हारा पूरा पैसा ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक मेरा पैसा नहीं मांगेंगे। आज तक नहीं मांगेंगे। जैसे क्लास में बोलते हैं कि हमको चैरिटी देना चाहिए ऐसे, लेकिन पर्सनली किसी ने आज तक नहीं मांगा, तो मैं नहीं गया। 13-14 साल हो गए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोले जिस दिन मेरे से मांगे उस दिन मत जाना। वही मुझे तो भरोसा, मैं तो यहाँ रेगुलर नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए ऐसे। मेरा केवल वही है कि हमें कोई चीज है, देखो समस्या क्या होती है ना, हमें कोई कह रहा है तो हमें उसे काउंटर अटैक करना है, हमें काउंटर अटैक करना चाहिए। हमारे अमोघ लीला प्रभु का आपको एक वीडियो है, मुलीन के प्रभु आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उन्होंने उसमें पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, और उन्होंने वहाँ पे लिंक्स वगैरह भी दिए, सजेस्ट किया है, अगर आपको जाके वेरिफिकेशन करना तो वो भी करें। ठीक है, तो आप उनको वो फॉरवर्ड करें। ठीक है ना? किसी और का कोई प्रश्न? लाइक बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में रहने के बाद में कभी कभी ऐसा मेरे दिमाग में आता है कि ये सब जो घर परिवार है सच्ची में मोह माया है, इनसे दूर होके कहीं चले जाओ। रियली अर्जुन को भी ऐसे आ रहा था। फिर एक बार मैंने बीच में भी एक प्रभु जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, गृहस्थ में रह के भी करना चाहिए। लेकिन अभी वृंदावन ट्रिप में गए थे,
जाके आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब मुझे इससे मुक्त होना है, वो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। देखिए, जब भगवान की भक्ति में हम जब प्रोग्रेस करते हैं, यही एक्चुअली में फाल्गु वैराग्य के बारे में बोलता हूँ। हम लोग एक्चुअली में जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रीचिंग करते हैं। जब स्टूडेंट्स को प्रीचिंग करते हैं ना, तो लोग भक्ति में आते हैं। आने के बाद वो बोलते हैं भगवान का भक्ति करने का, बस कुछ नहीं करने का। तो उनको बोलते पढ़ाई करना है। बाबा पढ़ाई तो मिनिमम एवरी डे दे हैव टू स्टडी मिनिमम 2.5 आवर्स और 3 आवर्स। गुरुजी ये तो कौन सी स्क्रिप्चर में मेंशन नहीं किया है। लेकिन उस स्टूडेंट का जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, पढ़ाई करना। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, आज नहीं पढ़ाई करेगा, तो जब फाइनल ईयर में प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सब लोग उसको बोलेंगे तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तब उसको भक्ति याद नहीं आएगी, तब भक्तों को ब्लेम करेगा कि भक्तों की वजह से मेरा भक्ति नहीं हुआ। तो एज ए मदर आपका ड्यूटी है अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने का। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है। किसका बेटा है? भगवान का बेटा है। और वो भगवान का बेटा है। अभी जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं, भक्ति में आते हैं, मूल्य प्रिया प्रभु है, आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं। आप लोग यात्रा में जाए, यात्रा में गए तो ऐसे नहीं कि केवल कथा कथा हो रहा है, प्रसाद हो ही नहीं रहा है। प्रसाद भी खिलाते हैं ना, करेक्ट? उल्टा ज्यादा मिलता है, ज्यादा वेरायटी मिलता है। अगर प्रसाद नहीं खिलाते कोई नहीं आएगा यात्रा में, करेक्ट ना? तो ध्यान रख रहे हैं किस किस का? बॉडी का, माइंड का और सोल का, तीनों का। तो ये जो शरीर है, इसमें आत्मा भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी रह रहे हैं इसमें। तो ये भगवान का मंदिर है, इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। उल्टा कर्मी लोगों से ज्यादा, कर्मी लोगों दारू पिएगा, स्मोक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब उल्टा सीधा काम करेगा, शरीर को बिगाड़ेगा। लेकिन हमको तो उल्टा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, शरीर में जो अब कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हमको रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। उसी प्रकार से जो आपका बेटा है, वो आपका बेटा नहीं है, वो भगवान का बेटा है। तो एज ए ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिम। सिमिलरली स्त्री धर्म जो भीष्म पितामह ने बताया हुआ है महाभारत में, स्त्री का जो ड्यूटी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्चुअली टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड आल्सो एंड चिल्ड्रन आल्सो। तो अगर उनको अगर आप अच्छे से रखेंगे और इतना अच्छे से ख्याल रखें कि बाकी के सब लोग भी इंस्पायर है, अरे यार वो अपने बेटे का कितना अच्छे से ध्यान रखती है, वो अपने पति का कितने अच्छे से ध्यान रखती है, तो उन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। क्यों? वो इतना अच्छे से क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो भगवान की भक्त है, चलो हमको भी भक्ति करना। तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए। अगर वो भक्त बने तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो आप एज ए मदर यू शुड सेट वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन, वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर हस्बैंड, वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर अदर फ्रेंड्स। दैट्स हाउ वी सर्व कृष्ण। अदरवाइज क्या होगा? इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। कई बार गए यात्रा में, बहुत ज्यादा वैराग्य आ गया, आने के बाद 64 माला चालू किए, फिर 6 महीने के बाद में सब बंद। फिर आप लोग ब्रह्मचारीपन के वैसे ही अपने परिवार को क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, ये दूसरा सब्जेक्ट मैटर है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम, चारों प्रिस्क्राइब्ड आश्रम। ऐसे ब्रह्मचारी इसका मतलब ये नहीं कि उसने परिवार को छोड़ दिया। जैसे मैं था, मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में 7 साल जॉब किया। घर वालों का कुछ मैंने बताया ना कि चाचा जी ने चीटिंग कर दिया था, तो उसके बाद में कुछ 1.5-2 करोड़ का वो था, लोन था, तो सब पूरा सेटल किया। दीदी वगैरह का शादी किया, भैया का जॉब लगवाया। वो बेंगलोर नहीं, वो भी 16 माला करती, मम्मी भी 16 माला करती, दोनों दीदी है वो भी दोनों 16 माला करती। तो वो लोग भी भक्त है। पिताजी हैं वो डेली भगवत गीता पढ़ते हैं, और वो अपना दूसरे संप्रदाय में इनिशिएशन हुआ होता है, तो वो उनका भी खुद का जप करते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम घर परिवार को छोड़ दिए, हम साल में 2 बार जाते भी हैं, घर वाले भी इधर आते हैं, यात्रा के लिए भी लेके जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिए मतलब कि देखना ही नहीं है उनका सरकार। तो जो वैदिक टाइम के जो एक होता है त्याग और एक होता है वैराग्य, 2 चीजें अलग अलग है। तो इसका मतलब नहीं, ब्रह्मचारी ये नहीं कि ब्रह्मचारी वो कुछ नहीं करता है। ब्रह्मचारी अपना ड्यूटी करता है, एट द सेम टाइम प्रॉपर्ली अपने परिवार को सेट करके। ऐसे नहीं कि इररिस्पॉन्सिबली कुछ नहीं कर पा रहा है इसलिए ब्रह्मचारी बन गया, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली इसको आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना, हाईली एजुकेटेड है, परिवार वगैरह में पूरा अच्छे से ध्यान करके सेटल करके फिर जाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी छोड़ छाड़ दिया इसलिए चलेंगे। और वो भी हर कोई नहीं बन पाता है, हजारों में से एक, और बन जाता है फिर उसके बाद में ऐसे कि नहीं कंटिन्यू करता है। नहीं, बहुत सारे ब्रह्मचारी 90% ऑफ ब्रह्मचारी और नेक्स्ट आश्रम में चले जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं, वहाँ गृहस्थ बन जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ समय के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद में कुछ लोग गृहस्थ बन जाते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इररिस्पॉन्सिबल है, अपना ड्यूटीज करते हैं।
हरे कृष्ण। भगवत गीता को वैल्यू ऑफ लाइफ बोला गया, उसके हिसाब से कैसे जीना चाहिए हमको, करेक्ट मैनुअल बोला गया, उसके हिसाब से कैसे जीना चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको देखिए ना, ये जी रहे हैं भगवत गीता का लाइफ, भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता का लाइफ आप जिएंगे तो अचानक से आपको 4 पंख लग जाएंगे, आप हवा में उड़ने लग जाएंगे, या कुछ आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, फिर आपके भ्रिकुटी में कुछ खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो सब इल्यूजन है। प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज कैन नेवर बी स्टोलन, समटाइम्स द चीटर्स दे से। एक ऐसे फेमस स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, अपने गुरु जी के चरण छुए, गुरु ने बोला कि मेरा पूरा ज्ञान तेरे को चला जाएगा, और शिष्य को पूरा ज्ञान चला गया। अभी गुरु रोने लग गया, क्यों? पूरा ज्ञान चला गया, गुरु खाली हो गया। ऐसा होता है क्या? ज्ञान ऐसे कभी होता है क्या? और वो बहुत फेमस इंसिडेंट है इंडिया में, वो बहुत फेमस इंसिडेंट है, और वो गुरु भी बहुत फेमस है, और उसका जो चेला है वो भी बहुत फेमस है, लेकिन वो क्या है? चीटर है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, बट ऐसे लोग चीटर है। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट वो एनलाइटनमेंट है, वो आपको खुद को महसूस होगा। जैसे अगर आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में आपको पड़ोसी से नहीं पूछना है कि आपको पेट भरा कि नहीं भरा, नहीं ना, आपको खुद को महसूस होगा। इसी प्रकार से अगर भगवत गीता पढ़ेंगे और उसको समझ के उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन होगा। उसी के लिए आपको भक्त का साथ चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे से थोड़ा सा एडवांस है। उसको पूछे कैसे मैं ये भगवत गीता के टीचिंग्स को अप्लाई करूंगा, मैंने ये श्लोक पढ़ा, इसका मतलब क्या है, कैसे मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। तो एक एक श्लोक बाय श्लोक, तो उसका सीधा सा मतलब हमारे इस्कॉन की टर्म्स में क्या है, आप सुबह में जल्दी उठे, सबसे पहले भगवान का नाम का जप करें, 15 या 20 मिनट एटलीस्ट एवरीडे भगवान के भगवत गीता के एक श्लोक पढ़े, भगवान का परपट पढ़े, उसमें से जो भी डाउट हो उसको मार्क करके रखें। जब भी आप वीकेंड से प्रभु जी से मिले, पूछें, डिस्कस करें कैसे अप्लाई करना है। कुछ चीज़ें होंगी प्रभु जी भी ना बता पाए तो अपने सीनियर से पूछ के बताएंगे, ऐसे। तो ऐसे प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन होता है। फिर शाम में अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप किसी और के साथ वो भगवत गीता को जितना आपको समझ में आ गया दूसरे को बताएं। यही भगवत गीता का जीवन। तो 4 नियम का पालन करना है, भगवत गीता को पढ़ना है, डिस्कस करना है, उसका एप्लीकेशन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू बिगिन। यस यस यस, कुछ लोग ना भगवत गीता को लेके लाल कपड़े में बांध के मंदिर के अंदर में रख देते एज इट इज। भगवत गीता का वो एम नहीं है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एक लड़की थी, मैं उनको दिया भगवत गीता ले लो, क्या हो गया, हम लोग बहुत अशुद्ध है। तो मैंने कहा कि आप लोग इतने भी अशुद्ध नहीं है कि भगवत गीता आपको शुद्ध नहीं बना सकती, आप पढ़े जीवन में अप्लाई करें। नहीं बोल, मैं इसको टच नहीं कर सकती। तो कई बार लोग ना ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना शुद्ध हूँ कि मेरे को भगवत गीता भी शुद्ध नहीं कर सकती। उनका माइंड में क्या चल रहा है, भगवत गीता मतलब उसको लेके घर में पूजा करना है और अगरबत्ती करना है। वो पर्पस नहीं है भगवत गीता का। भगवत गीता इज ए बुक दैट इज सपोज्ड टू बी रेड, दैट्स हाउ यू वर्शिप भगवत गीता। भगवत गीता को अगरबत्ती जलाने से भगवत गीता का वर्शिप नहीं होगा। भगवत गीता को खोल के पढ़ने से उसका वर्शिप होता है, ठीक है ना। तो यही सिंपल अर्थ है उसका, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक परिवार था एक्चुअली, मैं जब उस टाइम पे पीएस कॉलेज के पास में रहता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। वो परिवार में वो आदमी जो काम कर रहा था, वो उसका पत्नी, दोनों लोग एक्चुअली में आईटी में इंजीनियरिंग मतलब जॉब कर रहे थे, और हर वीकेंड पे वो लोग एक्चुअली में पार्टी करने के लिए जाते थे। उनका छोटा बेटा था, उसको भी लेके जाते थे, कभी कभी उसको भी पिला देते थे दारू। दोनों पीते थे दारू, पार्टी करते थे, डांस करते थे, उसके बाद में आ जाते थे, उल्टी करते थे, सो जाते थे। यही जीवन का अर्थ था उनके पास। एक दिन मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहा था, उनको दिया, दोनों थोड़ा ड्रंकार्ड स्टेट में थे। मैंने बोला कि ये जीवन का अर्थ नहीं, आपको आनंद की प्राप्ति हुई क्या? तो वो साइड में बैठ के उल्टी कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पी लिया था उसने। मैंने कहा आपको जो आनंद मिला उससे अगर 100 गुना अगर ज़्यादा आनंद नहीं मिले वो भगवत गीता की टीचिंग सप्लाई नहीं करने में, तो आप मेरा नाम बदल दें। बोले सच में? मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली में धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ना चालू किया। फिर वो हर वीक एक्चुअली में वहाँ पे जाने के बाद कहाँ पे आने लगे, मंदिर में आने लगे, दोनों पति पत्नी। अभी आज दोनों का दीक्षा हो गया। उनका बेटा बाकी भक्तों के साथ में बैठ के मृदंगा सीख रहा है, खतरनाक मृदंगा बजाता है एकदम। और अभी उसका जीवन पूरा एकदम 180 डिग्री पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया।
क्यों? भगवद गीता की टीचिंग से अप्लाई किया। तो ऐसे एक नहीं हजारों हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो भगवद गीता की टीचिंग से थोड़ा सा पढ़ा, अप्लाई किया, अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। यही प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने हिप्पीज को क्या बताया? हैप्पीज। करेक्ट? वो लोग भी दारू पीते थे, चरस खाते थे, गांजा पीते थे, सड़क के ऊपर ही सब कुछ करते थे एक्चुअली। वहीं पे 1 नंबर 2 नंबर वहीं सो जाते थे। कैन यू इमेजिन कैसा लाइफ जीते थे? इन प्रभुपाद के कॉन्टेक्ट में आए तो प्रभुपाद ने क्या बोला? हाई क्लास क्लीननेस, मिनिमम 3 टाइम्स बाथ, ब्राह्मण इनिशिएशन। बाप रे बाप, ऐसे लोग जो महीनों महीनों में नहीं नहाते थे, दिन में 3 बार स्नान, उनको संन्यास दे दिए। और दूसरों को, अभी आजकल हम लोग सोचते हैं कि हमको भगवद गीता पता है, लेकिन प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनके जितना हमको कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए जब वो लोग लेक्चर देते हैं ना, अब हजारों लाखों लोग एक्चुअली में ऐसे बैठ के सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। क्यों? मे बी दे बी विथ फॉरेन बॉडी बट दे आर हैविंग स्पेशल मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी। तो वो इफेक्ट होता है भगवद गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करने का। तो ये आज से ही नहीं है, कई सालों से चल रहा है ऐसे। मृगारी भी ऐसे ही था, नारद मुनि के कॉन्टेक्ट में आया, मृगारी बन गया भगवान का भक्त, रत्नाकर बन गया वाल्मीकि। हाउ लॉन्ग वी कैन गो? गुरु जी, मैं अभी आपकी इस बात से टोटल डिसएग्री। कौन सी बात से? अभी जो आपने बोला ना कि भगवान, एक्चुअली देखो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस समझते हैं। अगर ये चीज भगवद गीता से सब लोग ये चीज चेंज हो जाती तो फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी। नहीं, जो कलयुग आना, कलयुग आएगा ही नहीं। मुझे लगता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं होती। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ कनेक्ट हुए। देखिए प्रभु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार ना हमारे जो माइंड के जो विचार है ना, वो जो स्क्रिप्चर्स के विचार है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। मैं सोचता हूँ कि ये बात सत्य है, लेकिन वो बात सत्य नहीं है। प्रभुपाद ने खुद ने बोला है, अगर 2% ऑफ द पॉपुलेशन, प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है, मेरा नहीं है, प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है और वो वैकुंठ से आके यहाँ पे भगवद गीता का ज्ञान देके चले गए। उनके साथ एक कन्वर्सेशन है, उसमें वो एक्चुअल में एक पॉप से डिस्कस कर रहे थे। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम बता रहे थे कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे टीचिंग। प्रभुपाद ने बोला कि 2% लोग अगर भगवान के भक्त बन गए तो ये धरती है वो वैकुंठ बन जाएगी। अगर 2% लोगों ने भगवान की भगवद गीता की टीचिंग्स अपने जीवन में अप्लाई की तो ये धरती है वो वैकुंठ बन जाएगी। और वो हो रहा है, प्रभुपाद ने करके दिखाया है। कैसे? जब प्रभुपाद जब वहां पर थे तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, वो हिप्पीज को एक ट्रक में भर भर के लेके आते थे उनके पास में। प्रभुपाद के पास डाउनलोड करके जाते थे, उनको बोलते थे इनको थोड़ा सिखा दो, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट से भी ना, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे थे एक्चुअली, बहुत पैसा था, लेकिन वो सब चीजें उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो अगर भगवद गीता का नॉलेज जो दिया हुआ है, आप ऐसे मत समझिए कि भगवद गीता वो भगवान से डिफरेंट है। अगर भगवद गीता भगवान से डिफरेंट है तो ये आपका जो लॉजिक है वो सही है, लेकिन भगवद गीता है वो भगवान से डिफरेंट नहीं है। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत में जो स्क्रिप्चर्स है वो साक्षात भगवान का रूप है। अगर उनकी टीचिंग्स को अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और वही पर्पज है उनका, वही पर्पज है उनका। तो ये जो आप जो बता रहे हैं वो इंडिविजुअल की चॉइस होती है। जो चॉइस है ना, वो भगवान एक्चुअली में कभी किसी की चॉइस को बीच में नहीं डालते। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन भी उसी टाइम पे था जब भगवान थे, लेकिन भगवान ने कभी जाके दुर्योधन को ऐसे नहीं बोला कि मेरे को सरेंडर करो। उसको चॉइस दिया, उसने नहीं चूज किया। तो आज के लोग भी हैं, हम उनको चॉइस दे रहे हैं। देखो भगवान की ये गाथा है, अगर सरेंडर करोगे तो ये है, नहीं सरेंडर करोगे तो ये गति होगी, आपको चूज कर दो। आप किसी के कनपटी में गन नहीं रखते थे, भगवद गीता लगा नहीं तो अभी दबा दूंगा इसको, समझ गए ना? तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे वो जनरली नहीं समझ पाए। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक लोग रहते हैं इनोसेंट, जिनको कुछ नहीं पता है, कुछ भी जो भी बोल दिया एक्सेप्ट कर ले, उनको हमको प्रीचिंग करना चाहिए। जो लोग भक्ति में ऑलरेडी हैं उनके साथ हमको दोस्ती करना चाहिए। और कुछ लोग रहते हैं एनवियस एलिमेंट्स, उनके मन में बहुत ईर्ष्या भरी रहती है, कितना भी बताओ आप फिर भी उल्टा सीधा लॉजिक लगा के आपके प्रति गलती निकालेंगे। ऐसे लोगों से हमको डिस्टेंस रखना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी है ना, इनोसेंट, उनको प्रीच करना चाहिए, और जो लोग भक्त लोग हैं उनके साथ दोस्ती करना चाहिए, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि हमारा जो श्रद्धा है भगवान के प्रति वो कॉमन श्रद्धा है, अभी बहुत विकसित श्रद्धा नहीं हुई है।
इसलिए ऐसे लोग एक्चुअली में वो श्रद्धा को तोड़ सकते हैं। इसीलिए किसके साथ रहना चाहिए हमको? भक्तों के साथ दोस्ती करना चाहिए। जो आपसे जो छोटे लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको प्रचार करें। उसी तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। देखिए जब प्रभुपाद गए थे, अगर ये लॉजिक लगा दे प्रभुपाद, भगवान की इच्छा होगी तो प्रचार हो जाएगा अमेरिका में, तो कभी प्रचार होता क्या अमेरिका में? नहीं ना। कभी इस्कॉन होता? आज इस्कॉन के इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर, और वो हर साल मल्टीप्लाई कर रहा है, ज्यादा नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर इस्कॉन के भक्त सोच ले अरे भगवान का इच्छा हो जाएगा तो प्रचार हो जाएगा ऐसे साल में, तो मूल्य प्रिया प्रभु को कुछ करने की जरूरत नहीं। करेक्ट? भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी किया, बोला है, पृथ्वी आची आदि नगराधिक सर्वत्र प्रचार होई में मोरन, वो होगा। भगवान ने बोल दिया था ऑलरेडी, अर्जुन तू फाइट कर या ना कर, ये बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ये सब लोग मरने वाले हैं। तो ये पृथ्वी है, आप जो बोल रहे हैं वैकुंठ बनेगी, तो ये 10,000 साल के लिए बनने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। महाप्रभु ने, वो कृष्ण हिमसेल्फ है, उन्होंने खुद ने बोला, उनकी कृपा भी है। तो हमको हमारी तरफ से क्या करना है? पार्ट करना है बस अपना। अर्जुन ने अपना पार्ट किया, उसी प्रकार से हमको भी अपना पार्ट करना। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी बोलिए प्रिया, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? She want to ask. Non-vegetarian can be spiritual. Non-vegetarian can be spiritual. Good question. देखिए, you want me to answer in English or Hindi? Anything is fine. See, sometimes actually some people, specifically people from Andhra and these people, they are like too much conditioned actually for eating non-veg and all. So we are not saying that you give up today only non-veg. We are not against it. What we are saying, you accept Bhagavad Gita and start applying the teachings of Bhagavad Gita, start chanting holy name. If you want to advance in Krishna consciousness, then you start applying the teachings of Bhagavad Gita by reading yourself. Wherever you have confusion, ask him. And if you get sufficient taste in eating prasadam, then automatically you will be able to give up. Like after eating nice, like we went for Vrindavan Yatra, I hope you had nice feast. While eating feast, did you miss non-veg? No, not at all. Not at all. Nobody. Correct ना? जब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। और वेजिटेरियन ईटिंग में इतने सारे वेराइटीज है, इतना टेस्ट है, क्यों नॉनवेज के लिए जाना है? बाय दैट एक्चुअली वी क्रिएट सो मच ऑफ sin for other living entities. Correct? No? Innocent living entity, there somebody is killing and eating it. What joy is there in that? Just for the taste of one's tongue, actually we are creating trouble for others. Sometimes people say, because उनका नंबर ज़्यादा है इसलिए खा रहे हैं। अरे नहीं, उनको बढ़ा रहे हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उनको खाना है। अगर मान लीजिए आपका बेटा कमजोर है, कोई दूसरा आके बोले मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तुम्हारे से, इसको काट के खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये लॉजिक फिट होगा। फिर वहाँ पे क्या आ जाएगी? ह्यूमन राइट्स आ जाएगी। हमारा आदमी लोगों का राइट्स होता है, ये वो होता है, तो जानवरों का राइट्स नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की पार्ट एंड पार्सल है ना। तो इवन साइंस आल्सो सेज दैट देयर आर सो मेनी रीजंस। ऐसे नहीं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हो सकते। क्या मोड ऑफ गुडनेस में हो सकते हैं, बट जनरली एटलीस्ट दे कैन नॉट अचीव गॉड। क्यों? क्योंकि दूसरे के प्रति दया वो सबसे बड़ा कर्तव्य है एक्चुअली में भक्ति का, जो भी कोई स्पिरिचुअलिस्ट बनना चाहता है। ठीक है? ನಾನು